Good morning to all, my dear student of grade 10. This is geography lecture. Let's start with pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public and public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope you are at home and you are all are safe. So बच्चे, today in this AV we will discuss chapter climate. From the part rainy season or the southwest monsoon season. In this season we discuss about the temperature, pressure and wind, rainfall and one branch, that is Arabian Sea branch. The two water bodies affect the rain in this season, that is one is the Arabian Sea branch and another one the Bay of Bengal. Today we will discuss the Bay of Bengal. Before start this discussion, I would like to discuss few questions. The first one is, why Thar is a desert? The orientation of the Aravalli Range is parallel to the direction of the prevailing monsoon winds. So it does not affect any obstacle in the way of wind. Okay, that is the reason that Thar is a desert. तो अरावली रेंज इसके पैरेलल है, शेडो एरिया आ जाता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, जिससे टकरा के बारिश हो. क्लियर बेटा? द मॉइस्चर लेडन विंड्स पासिंग ओवर राजस्थान डू नॉट सैचुरेट as the heat in the desert region increase its capability to hold moisture. Understood? So let's start with the Bay of Bengal branch. This branch is originally directed towards the coast of Myanmar and the part of the southeast. Bangladesh, but the Arakan range along the coast of Myanmar is good enough to deflect a big chunk of this branch, enabling it to enter the Indian subcontinent. But this is the area of Myanmar. Okay, this one. So the branch is originally directed toward the coast of Myanmar. This is directly Bay of Bengal, Myanmar. Understood? This is the direction of the wind. And जब ये बांग्लादेश में जाती है, फिर ये चिन हिल्स में अराकन योमा रेंज से टकराती है, तब वहां पे बहुत सारी बारिश होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. द मानसून देयरफॉर एंटर बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम द साउथ और साउथ ईस्ट. फिर मानसून जो है वहां पे एंटर करती है बांग्लादेश में और बंगाल में. कौन सी डायरेक्शन से? साउथ वाली डायरेक्शन से.
एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। ये साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से नहीं आती, इस वाली डायरेक्शन से नहीं आती, ये वाली यहां से जाती है, दिस वन। Thereafter, this branch split into two under the influence of the mighty Himalaya and thermal low in the northwest India. फिर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज दिस वन, हिमालयन एरिया, एंड अदर दिस वन। ओके, हिमालयन एरिया और थर्मल लो इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चली जाती है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वन ब्रांच मूव्स वेस्टवर्ड, एक वेस्टवर्ड की तरफ जाती है। लुक एट दिस डायग्राम बेटा, एक डायरेक्शन जो है वो वेस्टवर्ड की तरफ जाती है और एक हिमालयन की तरफ जाती है। The amount of the rainfall by Bay of Bengal branch of monsoon shows a declining trend as winds move westward. This gets drier and drier, ये सूखती जाती है। As the distance from the sea increase, जैसे समुद्र से दूर जाती है मॉइस्चर कम होता जाता है। Due to this, इसी के कारण कोलकाता receives 119 सेंटीमीटर, पटना 105। ओके, एंड आफ्टर दैट जब ये नॉर्थ एरिया में आती है, दिल्ली में ओनली 51% ऑफ रेनफॉल जो है वो रह जाती है। द अदर ब्रांच मूव्स अप द ब्रह्मपुत्र वैली इन द नॉर्थ, दूसरी ब्रांच जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली में जाती है यहाँ। अंडरस्टूड ना? यू हैड डन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दिस इज द डेल्टा, ओके, एंड ब्रह्मपुत्र वैली दिस पार्ट। The other branch moves up the Brahmaputra valley in the north and northeast, causing widespread rain in the northeastern India. तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा जो है बारिश वो बे ऑफ द बंगाल ब्रांच के कारण होती है। Its sub branch strikes the Garo and Khasi Hill of Meghalaya, Mauzineram, located on the crest of the southern range of Khasi Hill, receives the highest average annual rainfall in the India. Cherrapunji, located 16 km east of Mauzineram, holds earlier rainfall records. खासी की जो पहाड़ियां हैं उसी में मौजिनरम है, वहीं पे चिरापुंजी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश जो है होती है। तो वहाँ पे बारिश कौन सी वाटर बॉडी के कारण होती है? दैट इज बे ऑफ बंगाल। The last season, that is the season of retreating monsoon. The month of October and November are known as season of retreating monsoon. During this season, the temperature in northern plains begins to decrease because sun rays no longer fall directly at the Tropic of Cancer. The low pressure trough become weaker and is no longer strong enough to attract the monsoon wind. This results in the retreating of the मानसून। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो सीजन आता है उसको रिटेटिंग मानसून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मंथ में जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न प्लेन्स में वो घटना शुरू हो जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, ओके, उसके कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है रेस वो सन की नहीं पड़ती, जब वहां पे नहीं पड़ती तो जो है टेम्परेचर लो हो जाता है। बट लो प्रेशर बिकम वीकर एंड इज नो लॉन्गर स्ट्रांग इनफ। लो प्रेशर जो है और वीक हो जाता है और इतना स्ट्रांग नहीं रहता कि वो मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। देन टेम्परेचर
The retreat of the monsoon is marked by clear sky and rise in temperature. Underline beta, rise in temperature. During this period, humidity is very high. Due to the high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive. This is commonly known as October heat. In the second half of the October, the mercury begins to fall rapidly. टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ओके, लास्ट में। लेकिन उससे पहले टेम्परेचर राइज करता है और उसमें ह्यूमिडिटी होती है, इसीलिए इसको अक्टूबर हीट बोला जाता है। प्रेशर एंड विंड। एज द मानसून retreat, the elongated trough of the low pressure which once prevailed over northwestern India gets transferred to the center of Bay of Bengal by the early November. Okay. Elongated means long and thin. Long and thin, लंबाई में ज़्यादा होती है लेकिन पतली होती है, बादल ज़्यादा गहरे नहीं होते। द लो प्रेशर विच वंस प्रिवेल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न, लो प्रेशर जो एक बार प्रिवेल होता है, प्रिवेल मीन्स होता है बेटा जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, ओवर नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ जाता है, इंडिया गेट्स ट्रांसफर टू द सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल। और ये फिर मानसून जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते जाते फिर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। कब तक? नवंबर तक। दिस इज द सीजन व्हेन साउथ वेस्ट मानसून, ये वही टाइम है जब साउथ वेस्ट मानसून, साउथ से चलने वाली वेस्ट की तरफ मानसून जो है वो गिव प्लेस टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून। वो वाली जो है मानसून वो नॉर्थ ईस्ट मानसून को प्लेस देती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है ये वाली नॉर्थ ईस्ट मानसून। साइक्लोन्स, द पीरियड इज एसोसिएटेड विद occurrence of cyclone depression which originate over अंडमान सी। साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? सी में आते हैं, ओके। इस पीरियड में जो अंडमान सी है उसमें ज्यादा आते हैं। द एरिया मोस्ट वल्नरेबल टू दीज स्टॉर्म्स इंक्लूड द कोस्ट बेल्ट ऑफ तमिलनाडु। और जो सबसे वीक एरिया होता है, वल्नरेबल, फिजिकली वीक, वो हमारी ये कोस्ट है, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ पे है बेटा? दिस साइड, ओके। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिस साइड, ये एरिया जो है वो वीक हो जाता है। देन नेक्स्ट इज बेटा टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये आप खुद करोगे क्योंकि ये मैंने करवा दिए हैं, तो ये इंटरनल पॉइंट्स उन्होंने निकाल के लिखे हुए हैं बुक में, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से। देन प्रेसिपिटेशन, द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन, ओनली केरला, तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल। The northeast monsoon absorbed moisture while passing over the Bay of Bengal and caused rainfall in the southeastern coast of India. Next, the most important question is major feature of the Indian monsoon. So learn all this by yourself because I already discussed this beta. If you find any difficulty, then we will cover this in the introduction class. जो बच्चे जो आपको पॉइंट्स निकाल के दिए गए हैं बुक में, ये सभी आपने खुद याद करने हैं बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चंस। इन्हीं को ही इंटरनल बोला जाता है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नीचे लिखे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द रिलीफ, डायरेक्शन ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स, पाथ ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें रिलीफ क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है एक हाई, किसी भी हाइट का, हाईएस्ट पॉइंट एंड लो पॉइंट के तक। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, इसके अंदर जितना भी डिफरेंस आया
इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अंदर जितना भी डिफरेंस आया दैट इज नोन एज रिलीफ. देन the Indian subcontinent can be divided into 4 rainfall regions. 4 rainfall regions है, 4 seasons है, 4 ही हमारे rainfall regions है. The area of heavy rainfall, ठीक है, हैवी रेनफॉल जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक होती है. ठीक है, इसमें वेस्टर्न घाट्स आ जाती है बेटा, असम रीजन आ जाता है, दिस वन वेस्टर्न घाट्स, असम रीजन. ओके, सेकेंड है रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे मीडियम होती है, मिडॉकर होती है, 100 to 200 सेंटीमीटर a ईयर. ये मिडल गंगा वैली आ गई इन बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. देन थर्ड वन दैट इज द रीजन ऑफ स्केंटी रेनफॉल. स्केंटी मीन्स लेस होती है यहाँ पे, दैट इज 50 to 100 सेंटीमीटर a ईयर. ठीक है, दिस इज द अपर गंगा वैली, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर रिसीव स्केंटी रेनफॉल. The monsoon duration in these areas is short as these areas are last to receive the rainfall. क्यों short होती है? क्योंकि ये areas last में receive करते हैं rainfall. Okay? So this is one give geographical reason why in these areas there is a scanty rainfall. And last one is desert and semi-desert region where the rainfall is less than 50 centimeter a year. So these are the northern parts of Kashmir, southern Punjab, parts of Haryana, western Rajasthan, Thar and Kutch Peninsula and the rain shadow region of the western Ghats. Rain shadow जहाँ पे shadow होती है, जो opposite area होता है wind का. Okay? I hope you understood this chapter. This was the end of chapter. In next assignment we will discuss the question answers. Thank you and have a nice day.